ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਬੀ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਹੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਹੇਗੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਰੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PR ਤੱਕ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਪਾਊਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। थैंक यू। सत श्रीकाल प्रदीप जी, पहले तो दसो सेहतां किवें ने? बस दया जी भगवान का और दर्शकों का, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स का प्यार मिला है जी, और जो दुआएं मिली है, तो एक रिकवरी हुई है बहुत अच्छे लेवल पे। तो अगेन आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया है। परमात्मा ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਤਕੜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਹਲੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਐਡ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀ ਐਡ ਦੇਖੀ ਸੀ 5.5 ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ TV ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਗਰੰਟਡ 5.5 ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ 500-700 ਕੇਸ ਮੈਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਜੀ। 16-17 ਫਿਰ 23-24 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। प्रदीप जी ਇਹਨਾਂ ਲਈ शुरुआत करो जी। देखिए, ये ग्लोबल एजुकेशन फेयर हम कर रहे हैं जिसमें कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, UK भी है, USA भी है, न्यूजीलैंड भी है एंड यूरोप भी है। मीन्स हमें अंडर वन रूप हर एक कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्लस में मेरी टीम यहाँ पे होगी। रीजन बिहाइंड दिस, कोई बच्चा अगर कनाडा सूट नहीं करता तो वो यूरोप जा सकता है, यूरोप नहीं जा सकता तो सिंगापुर, साइप्रस भी जा सकता है। तो हर एक कंट्रीज़ का हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा, प्लस में मेरी टीम होगी। तो दोस्तों, अगर कागज़ पेन अगर आपके पास हो तो एक बार जो नोट जरूर कर लो। 16 तारीख को, 16 अप्रैल को दिन सोमवार है, तो इसमें 3 जगह मेरी टीम डिवाइड है, प्लस डेलीगेट डिवाइड्स हैं। चंडीगढ़ में हम होटल अरोमा में आ रहे हैं, सुबह एक ही दिन पूरी टीम डिवाइड है जी, पूरे डेलीगेट्स हैं। चंडीगढ़ 16 तारीख को होटल अरोमा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पे टीम होगी। फिर अम्बाला सेम डे 16 तारीख को ही कर्ण प्लाजा प्रेम नगर में, ये अपना कर्ण प्लाजा है, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। और कुरुक्षेत्र होटल 9th प्लानेट। तो 16 तारीख को दिन सोमवार चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र और अम्बाला 3 जगह सेमिनार है। 17 तारीख को यमुनानगर, ये पिरामिड कैफ़े लॉन्ज है जो कि मॉडल टाउन में पड़ता है। इसके अलावा कैथल में है, लक्कनपाल होटल है पार्क रोड पे, और सोनीपत सागर रेस्टोरेंट है सुभाष चौक पे। तो तीनों जगह पे सेमिनार से सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक। इसके बाद 23 तारीख को फिर हमने 3-4-5 दिन का ब्रेक लिया है। इसके बाद 23 अप्रैल को दिन सोमवार अमृतसर होटल बेस्ट वेस्टर्न में है जी, ये जो कि B ब्लॉक पड़ता है रणजीत एवेन्यू में, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल है, अपना बस स्टैंड के, अपना क्या नाम है, जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है, हेड पोस्ट ऑफिस है, उसके सामने पड़ता है अपना होटल मोहन कॉन्टिनेंटल। और होशियारपुर में होटल ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨਿਊ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੌਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ ਫੁਆਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਹੈ। 3-4 जगह ने मेन ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ। और मोहन कॉन्टिनेंटल बहुत फेमस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। तो 23 तारीख को अगेन रिपीट करूंगा, अमृतसर होटल बेस्ट वेस्टर्न रणजीत एवेन्यू में है B ब्लॉक में। पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल और होशियारपुर में है होटल प्रेसिडेंसी मॉडल टाउन में।
24 तारीख को जलंधर होटल किंग्स में है, मोगा 24 तारीख को यह होटल दिंगरा जीटी रोड पे है, और लुधियाना 24 तारीख को ये होटल फिरोज गांधी मार्केट में है। 25 तारीख को 25 अप्रैल दिन बुधवार पड़ता है जी, गुरदासपुर हमारे हैं होटल इंटरनेशनल नियर बस स्टैंड जीटी रोड पे, बरनाला होटल मिडवेज में है, और बठिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। तो ये हमारे सेमिनार है जी, पूरी टीम है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की, जिसमें कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे, मैं खुद अवेलेबल होऊंगा, पूरी टीम होगी। तो आप यहाँ पे सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आप हर एक स्टूडेंट्स का वेलकम है, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से रिजेक्ट है वो स्टूडेंट्स का भी है, जो बच्चे का ऑफर लेटर नहीं आ रहा वो भी आ सकता है, जो फ्रेश स्टूडेंट्स है वो भी आ सकते हैं, जो कहीं ना कहीं से मायूस हैं वो सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ मिल सकते हैं। फ्री एंट्री होगी जी, कोई पैसा नहीं लगना। सेकेंडली अपॉइंटमेंट लेके अगर आएंगे तो इट विल बी मोर बेटर। जो नंबर चल रहा है उस पर आप अपना अपॉइंटमेंट ले लीजिए अभी से। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कुछ कॉलेज की एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, जिस कॉलेज की एप्लीकेशन उसमें 50% ऑफ आपको मिल रहा है। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 80 ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਪੌਸ ਕੇਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ मकसद ਕੀ ਹੁੰਦਾ? रणवीर जी देखिए, मेरा सक्सेस रेट 90% अबव हमेशा रहता है। वो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये भी हमारी जो एक्सपेरिमेंट है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 15-16 साल का, वो मैटर करता है। सेकेंडली हमें नो कहने की कैपेसिटी है। अगर किसी बच्चे का वीज़ा नहीं लगना तो हम नो बोल देते, नहीं बेटा तू इस कंट्री में नहीं इस कंट्री में जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं। एक बच्चा बठिंडा, बरनाला या फिर आप मोगा से अगर बात करें, या फिर फिरोजपुर से बात करें, या गुरदासपुर से बात करें, हर एक बच्चा चंडीगढ़, अम्बाला या फिर क्या नाम है जलंधर और अमृतसर नहीं आ सकता। तो हमें स्टूडेंट के द्वार पे जाना होता है, क्योंकि अप्लीकेशंस आ रही हैं, कुछ बच्चे टाइम पे नहीं आ पाते। सेकेंडली कि ये भी हमारा एक रीजन्स है कि भाई बच्चा गलत हाथों में ना पड़े। हो सकता है हम अपनी तरफ से बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कहीं ना कहीं हमारी भी सर्विसेज ले, क्योंकि वी टोटली डेडिकेटेड फॉर होनेस्टी। मेरी पूरी फैमिली का ये बिजनेस है, जिसमें मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, मेरे ब्रदर इन्वॉल्व हैं, मेरा ब्रदर इन लॉ इन्वॉल्व है। तो ये पूरा फैमिली बिजनेस है जी। कहीं ना कहीं हमें सर्विसेज देने के लिए आपके दरवाजे पे आना पड़ रहा है, आएंगे हमेशा। सेकेंडली टारगेट्स भी होते हैं। आज की डेट में इतना बड़ा परिवार है वेस्टर्न ओवरसीज का, आज की डेट में हम 2000, 3000, 5000 एप्लीकेशन डालने की कैपेसिटी रखते हैं। तो टाइप्स हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हमें पूरे वो क्या नाम है टारगेट्स देने होते हैं। और दूसरी बात, अच्छे क्रीम स्टूडेंट चाहिए। तो क्रीम स्टूडेंट कहीं ना कहीं दिया लेके घूमना पड़ता है, तब वो बच्चे मिलते हैं। तो काफ़ी रीजंस है जी, बच्चों से प्यार है, बच्चे बठिंडा से भी आ रहे हैं, बच्चे गुरदासपुर से भी आ रहे हैं, तो वो आ सकते हैं, तो मैं क्यों ना चाहूँ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਡ ਆਹ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1-to-1 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1000 ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਪੁੰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, है ना। डेफिनेटली देखो, बिजनेस व्यापार तो है ही है, ये बिजनेस है वो मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 1-to-1 काउंसलिंग, कॉलेज के डेलीगेट से मिलना, फिर खुद मेरे से मिलना, मेरे काउंसलर से मिलना, और यस है तो यस, नो है तो नो, तो एक तरह से बच्चे से फेस टू फेस मिलने का चांस मिल जाता है। और उसके दरवाजे पे आके, उसके मतलब उसके शहर में जाके, तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी जी। सो शुरुआत करिए जी, 4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਗਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਇਲਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਰੀਏ, ਕਦੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰੀਏ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਇਲ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। देखिए दोस्तों, ये एक फर्स्ट स्टेप है। वीज़ा तो लगना बाद की बात है, उससे पहला स्टेप होता है कि भाई आपने एक, हम नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, तो इंग्लिश कंट्री में जाना है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर आइल्स या पीटी होना आपके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट रणवीर जी ऐसे आते हैं जो मतलब इस कारण से, सिर्फ इस कारण से कि उनका स्कोर नहीं आ पाता, और 6 महीने, 7, फिर 2 साल, फिर साल, 2-3 साल का गैप बच्चे का पड़ जाता है। जब बच्चे से पूछा जाता है तो बोलते हैं कि जी पहले तो मैं वेट ही करता रहा जी,
कि मैं किस कंट्री में जाऊँ। फिर मैं क्या नाम है उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लिया, मेरा स्कोर नहीं आया, फिर मैंने दूसरा इंस्टीट्यूट बदल लिया, फिर तीसरा ले लिया, फिर चौथा ले लिया। तो इस तरह से मैं 3 साल पंचवर्षीय योजना ही बना देते हैं कि वो IELTS करते रहते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर IELTS या PT आपने टाइम पे कंप्लीट कर ली तो आप फिर कहीं ना कहीं वीज़ा ले सकते हैं। तो देखिए आपके जो मार्क्स हैं, जो आपकी 12th है या आपकी ग्रेजुएशन है, उसमें जो मार्क्स हैं वो मैटर करते हैं, साथ साथ में IELTS या PT का स्कोर भी मैटर करता है। क्योंकि नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, आगे हमें एडमिशन लेने के लिए एक अच्छा चंगा स्कोर लेना होना जरूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी एडमिशन कहीं ना कहीं आपका जो IELTS और PT का स्कोर दे के देते हैं, प्लस में वीज़ा ऑफिसर भी ये चीज़ देखते हैं कि आपकी परसेंटेज तो 80% है, बैंड 5.5 है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं मैच नहीं होती है। तो एम्बेसी फिर ये समझती है कि यार कहीं ना कहीं निकल करके पास तो नहीं, जो भी है किसी भी तरह का डाउट हो सकता है, कोई भी डाउट हो सकता है। तो भैया एक IELTS इंस्टीट्यूट बेटर होना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो टाइम पे अगर आप IELTS करेंगे तभी आप बाहर जा पाएंगे। तो वेस्टर्न ओवरसीज आपको सर्विस दे सकता है, क्योंकि हम एक तो IDP और BC सर्टिफाइड ट्रेनर हमारे पास है। स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज यहाँ पे बच्चों को मिलेगी, चाहे आपको रीडिंग में प्रॉब्लम है, चाहे राइटिंग में प्रॉब्लम है। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, जिस बच्चे का IELTS नहीं हो रहा है वो एक बार आके मेरे से जरूर मिलिए, क्योंकि जो हमारा 8 घंटे की जो मेहनत है, प्लस में इसके अलावा होमवर्क स्टूडेंट्स को दिया जाता है, और साथ साथ में जो टिप्स एंड स्ट्रेटजी वो रियली मैटर करती है। मैं IDP से क्या नाम है बेस्ट इन रीजन अवार्ड विनर हूँ, प्लस मैं ब्रिटिश काउंसिल का गोल्ड मेंबर भी हूँ। कुछ बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली आए हैं, मैं लक्की स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कोर आया है मतलब अनबिलीवेबल। किसी ने हफ्ते की कोचिंग ली, किसी ने 10 दिन की, किसी ने की महीने की, और बहुत ज़बरदस्त स्कोर आया है। ये बच्चा है मिस्टर गुरजोत सिंह, इसके ओवरऑल स्कोर है 75 मतलब आउट ऑफ 90। अच्छा, तो कहने का मतलब 7.5+ बैंड इस बच्चे के हैं। ये बच्चा है अपना हरमन टुटेजा, 90 में से 68% मार्क्स हैं, और जिसमें 7 बैंड है, जिसमें से इसके रीडिंग अपने क्या नाम है स्पीकिंग में 8.5 बैंड है, 87 मार्क्स हैं। क्या आबा सैनी है 7.5 बैंड है, इसके 73 आए आउट ऑफ 90। और 16 मार्च ये अपना क्या नाम है जो इन्होंने पेपर दिया है, टेस्ट डेट 9 जून की थी जी। तो इसके अलावा ये आपका 10 मार्च को पेपर हुआ है 2018 में ही। 7 बैंड है, आप देख सकते हैं बच्चे के। लिसनिंग में 8 है, रीडिंग में 7 है, राइटिंग में 6 है, स्पीकिंग में 7 है। इसके अलावा मिस्टर रविंदर सिंह है, 10 मार्च को रिसेंटली अभी इस बच्चे ने पेपर दिया है, इसके बैंड है 7, लिसनिंग में 8, रीडिंग में 7, राइटिंग में 6.5, स्पीकिंग में 6.5। इसके अलावा ये बच्चा है कुलविंदर कौर, इसका पेपर हुआ है 10 मार्च को, अगेन 7 बैंड। तो सेम ऐसे ही 8.5 बैंड, 7 बैंड, 6.5 बैंड, हर एक मॉड्यूल्स में अलग अलग हैं। ये स्टूडेंट है 3 मार्च को पेपर इस बच्चे ने दिया था, वैभव अग्रवाल है, 7.5 बैंड है, जिसके स्पीकिंग में 7, राइटिंग में 6.5, रीडिंग में 8, लिसनिंग में 8। तो इस तरह के हजारों एग्जांपल्स वेस्टर्न ओवरसीज के पास हैं जिनका स्कोर आया है। जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। जगदीप सिंह अगेन 7.5 बैंड है, आप देख सकते हैं इस बच्चे का मार्क्स। ये बच्चा अंकित मोहर है, इसका स्कोर आया जी 7 बैंड, आप देख सकते हैं, जिसमें लिसनिंग में 7.5, रीडिंग में 7.5, स्पीकिंग में 6। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों पे हार्डवर्क करते हैं, डेडिकेट टीम है और बच्चों का स्कोर बोलता है। सबसे पहला स्टेप यही आपका IELTS या PT है। अगर ये चंगा स्कोर आपका आ गया तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एक रिलेवेंट कोर्स में एडमिशन लेके आप वीज़ा ले सकते हैं। तो इनिशियली हम सेमिनार की बात करते करते हम सिर्फ IELTS की बात हमने इसलिए स्टार्ट कर दी क्योंकि आज की डेट में आप रिसेंट पास आउट हैं, आपने 12th के मार्क्स पेपर दिए हैं, जब तक आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जब आपके रिजल्ट आएंगे जो 12th के हैं, उससे पहले आपके हाथ में IELTS होना चाहिए। और IELTS करने के लिए आपके पास एक चंगा कंसल्टेंट, एक चंगा IELTS इंस्टीट्यूट होना जरूरी है। और IELTS इंस्टीट्यूट में भी बेस्ट फैकल्टी होनी चाहिए जो है जिसका डिलीवरिंग मेथड बहुत जबरदस्त हो। सर आपने देखा होगा जब हम 10th 12th या ग्रेजुएशन कर रहे थे, एक टीचर्स की बहुत अच्छी एजुकेशन होती है लेकिन उसका डिलीवरिंग मेथड अच्छा नहीं होता, तो बोरिंग हो जाती है क्लास। और एक टीचर थोड़ा सा कम्पिटिटिव ही है, जितनी अच्छी हाई एजुकेशन चाहे भले ही ना हो, लेकिन उनका डिलीवरिंग मेथड बहुत अच्छा होता है, तो बच्चे उसको मतलब ध्यान से सुनते हैं। तो वही चीज़ वेस्टर्न ओवरसीज के पास है, जो रीडिंग राइटिंग में स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं बड़े ध्यान से सुनते हैं, मिस नहीं करते हैं, और उसी कारण से ये स्कोर आता है। ये भानु गुप्ता है, अगेन इसके 7.5 है अपना। ये 24 फरवरी का रिजल्ट है जी आपका। कनिका 6.5 बैंड है। महक लड़की है, इसके 6.5, महक लड़का है, 6.5 बैंड है इसके। और ये नीरू अग्रवाल है 10 मार्च का, 7 बैंड,
जिसमें लिसनिंग में 8.5, रीडिंग में 7, राइटिंग में 6, स्पीकिंग में 6। तो ये स्कोर आपके सामने बोल रहा है कि बच्चों के स्कोर आते हैं, बशर्ते कि उन पे हार्डवर्क किया जाए। पीटी का एक स्कोर और है जो कि स्टूडेंट्स का नाम है अनुभव, और इसका स्कोर है 62। तो कहने का मतलब है आपके शो पे आके लोग बोलते होंगे वीज़ा के बारे में, जी हमने वीज़ा लगवाया, वेस्ट ओवरसीज वीज़ा लगवाता है, बट उससे पहले जो स्टेप है बेसिक जो जरूरी है, तो वो स्कोर भी हम आपके सामने लेके आते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है और आप परेशान हैं तो चंडीगढ़ या फिर क्या नाम अम्बाला या कुरुक्षेत्र या अमृतसर, जो भी नियरेस्ट आपका ऑफिस पड़ता है, आप वहाँ आइए, आपको डेडिकेट टीम मिलेगी, आपका स्कोर दिलाएंगे। साथ साथ में मैं एक चीज़ और अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि जो 16, 17 और 23, 24 और 25 को जो सेमिनार हो रहे हैं हमारे ग्लोबल एजुकेशन फेयर, इसमें आईडीपी और बीसी सर्टिफाइड ट्रेनर भी वहाँ पे होंगे। स्पेशल सेशन लिया जाएगा उन बच्चों का जिन्होंने आइल्स करना है या पीटी करना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे भी ये सॉर्ट आउट की जाएंगी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿਖਾਏ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਾ ਅੰਬਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ? देखिए जी, टोटली डिपेंड करता है, लेकिन मेरा काम करने का तरीका टोटली डिफरेंट है हमारे। देखिए जब तक टीचर, जितने भी जो भी टीचर्स हैं हमारे, वो सारे के सारे आईडीपी और बीसी ट्रेंड है। पहली बात तो ब्रिटिश काउंसिल से ट्रेंड है और आईडीपी से ट्रेंड है। सेकेंडली हमारी हफ्ते में मेन मास्टर क्लास चलती है, बल्कि इवन के लाइक टीचर ट्रेन प्रोग्राम भी चलता है। टीचर ट्रेन प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो फैकल्टीज़ हैं उनके टेस्ट लिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि हाउ टू टीच। तो कहने का मतलब ये है कि जो टीचर्स हैं वो हमारे पास अप टू मार्क है, जो स्कोर दिलाते हैं। मैं खुद बोलता हूँ कि अगर आपका स्कोर नहीं आता तो आप मेरे पास आइए, बशर्ते कि मेरे हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ऑफिस टू ऑफिस कहीं ना कहीं आ जाता है, लेकिन हमारे पास फैकल्टी अप टू मार्क है, बल्कि अप टू मार्क से अबव हैं, तो आपको ਸਕੋਰ ਦਿਲਾਂਗੇ। ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਪ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ 4 ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਚੁਣਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੈਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦਸਤਕ ਹੈ ਇੱਕ स्टूडेंट्स के वास्ते कि यूरोप वास्ते रैप आ रहे हैं। डेफिनेटली ये उन स्टूडेंट्स को देखते हुए, स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए हमने ये रिप्रेजेंटेटिव बुलाए हैं, प्लस में अपनी काउंसलिंग टीम वहाँ पे सेमिनार्स में लेके आ रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में कनाडा जाने वाले बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चे हैं, उसी हिसाब से यूरोप जाने वाले बच्चे भी हैं। यूरोप में जर्मनी है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद 18 मंथ का मतलब 18 महीने का वर्क वीज़ा है जो लीडिंग टू PR है। बहुत से कंसल्टेंट्स को पता ही नहीं है, और इवन की इंजीनियरिंग के लिए बहुत स्पेशलिस्ट है, बहुत स्पेशलिस्ट है। हम अगर बात करें फ्रांस की, फ्रांस में 2 साल का PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। अगर हम पोलैंड की बात करें, इसी तरह से हंगरी की बात करें, इस तरह लिथुनिया, लातविया की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, स्विट्जरलैंड में जो बच्चा अगर पढ़ता है तो स्टडी कंप्लीट करने के बाद बच्चे की प्लेसमेंट होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और 6 मंथ की स्टडी और 6 मंथ की जॉब ड्यूरिंग स्टडी होती है। हर साल 6 महीने की स्टडी और 6 महीने की जॉब है। तो वेस्टर्न ओवरसीज कोई स्पेशल मतलब ये नहीं किसी एक कंट्री के लिए है, हर एक कंट्री के लिए, चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, चाहे न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, USA है या UK है या यूरोप है, हर एक कंट्रीज़ की सर्विसेज आपको मिलेंगी और डायरेक्ट टाई अप्स हैं। दोस्तों बहुत से कम कंसल्टेंट ऐसे होंगे जो सारे कंट्रीज़ को करते होंगे, वेस्ट ओवरसीज इज वन ऑफ देम जो आपको सर्विसेज। ਹੁਣ 26 ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ रैप ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? देखिए कॉलेजेज हैं, कॉलेजेस के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के रैप हैं, वो लिस्ट पूरी अभी अनाउंस हो जाएगी। तो अभी कुछ की ओके हो चुकी है, कुछ अभी क्या नाम है इंडिया में आने वाले हैं। तो उस हिसाब से ये चीज़ पूरी एक तकरीबन 30-35 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव जो ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਾਮਨ ਜੀਆਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੀ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ऐसा की पूछना चाहिए ताकि बच्चा जो है उत्थे जाके परेशान ना हो? देखिए स्टूडेंट्स को यही पूछना चाहिए, जो वैसे मेरे क्वेश्चन का आंसर आप अपने क्वेश्चन का आंसर खुद दे चुके हो कि भाई मैं न्यूजीलैंड ही मतलब मान लो मैं जर्मनी क्यों जाऊँ, मैं फ्रांस ही क्यों जाऊँ, पहला क्वेश्चन यही है।
तो बताएगा कि वाई पर्टिकुलर दिस कंट्री, बताएगा कि आपका ही कॉलेज क्यों है, एजुकेशन सिस्टम क्या है, वहाँ क्या आपकी लैंग्वेज में पढ़ाई होगी या इंग्लिश में होगी, मैं जॉब ड्यूरिंग जॉब जो मेरी स्टडी के दौरान मेरे को कितने वर्क अलाउ है, मैं काम कर सकता हूँ, स्टडी के बाद मेरे पास PSW पोस्ट स्टडी वर्क वीजा होगा या नहीं होगा, खर्चा कितना है, यहाँ पे पैकेज सिस्टम बड़ा चलता है, एजेंट्स बड़े लगाते हैं, फीस हो रही होगी 4 लाख रुपए बताते हैं एजेंट को, स्टूडेंट को 8 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ होंगी। तो कॉलेज से बच्चा पूछ सकता है कि बच्चा कॉलेज से पूछ सकता है हाँ जी आपकी फ़ीस कितनी है। तो ये सारी चीज़ें प्लस में आपके डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन फीस एडवांस में आप क्या लेते हो या नहीं लेते हो। तो सारे क्वेश्चंस वही हैं जी जो कनाडा वाले बच्चों के हैं, जो ऑस्ट्रेलिया वालों के हैं, जो न्यूजीलैंड वालों के। अच्छा माइग्रेट हो सकता हूँ नहीं हो सकता, मैं कनाडा मूव करना चाहता हूँ, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, मैं जर्मनी से फ्रांस जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ नहीं जा सकता हूँ, मैं 28-29 कंट्री है सैनिक, मैं उनमें ट्रैवल कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। दीज आर द क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछ सकता है। ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ PR ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ PR ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਲਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਜੈਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ एक्सपर्ट ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ। एक बात और बताऊँ रणवीर जी, कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो चलो ठीक है कि गोरे का एक फेस देख लेते हैं, बट वो सेटिस्फाई कंसल्टेंट से ही होते हैं काउंसलर से ही होते हैं, क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चन कर पाते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ 16, 17, 23, 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਨਕ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 3 ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ। ਕੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ काउंसलिंग दोगे? देखिए सर, मैंने कनाडा के 5 बार रिफ्यूज़ल बच्चों के भी वीज़ा लिए हैं, 6 बार रिफ्यूज़ल के भी लिए, 3 बार के भी है। तो ये एम्बेसी वीज़ा देने के लिए खुली है, बशर्ते कि आपकी फाइल में कोई फ्रॉड ना हुआ हो। तो आप आइए, मिलिए एक बार। आप जो रिफ्यूज़ल स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक तो फाइल की फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके आएँ, मतलब जो आपकी प्रीवियस फाइल एम्बेसी में गई थी कोशिश करो उसकी फ़ोटोकॉपी ले, प्लस में अपना रिफ्यूज़ल लेटर ये साथ लेके आए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके केस को समझने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। हम देख पाऊँगा कि फ़ाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे उसने कंसल्टेंट्स ने, और क्या नाम है इसके अलावा क्या नाम आपका रिफ्यूज़ल किस आधार पर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑन स्पॉट हम डिसीजन ले सकते हैं। एक मेरी आप सभी से जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी जिस भी कंसल्टेंट के पास आप जाते हैं आप अपनी फाइल की फोटोकॉपी जरूर मांगे उस कंसल्टेंट से। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बल्कि 99% क्या 100% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको इस बात से मतलब ही नहीं है। वो उस टाइम इतने मतलब स्पीड से होते हैं कि बस कल ही वीज़ा आ जाएगा। वो ये नहीं पूछता कि मेरी SOP क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ मेरा क्या बना है क्या नहीं बना है, उसमें मेरे कुछ एफर्ट्स स्टूडेंट्स के एफर्ट्स हुए नहीं हुए। सेकेंडली फाइल की फ़ोटोकॉपी होनी जरूरी है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कनाडा SPP में फाइल लगती है, सपोज करो रिफ्यूज़ हो जाता है एक बच्चे का, और बच्चा बहुत से कंसल्टेंट भी ऐसे हैं जो फाइल की फोटोकॉपी नहीं रखते। अब नहीं रखते थे, इसका नेगेटिव क्या है? SPP में एक बार रिफ्यूज हो गया तो दोबारा फाइल लगेगी जनरल में। जब जनरल में फाइल लगती है तो सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं। अब भैया जब SPP में ही नहीं पता क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं तो वो जनरल में क्या सर नाल प्रूफ भी मांगते हैं। हाँ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਭਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਹੈ, प्रूफ की दोगे? जी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से, चाहे कंसल्टेंट आपका A है चाहे Z है, जो भी कंसल्टेंट है XYZ जो भी है, आप उस कंसल्टेंट से फाइल लॉन्च होने से पहले फाइल की फोटोकॉपी जरूर मांगे। बुरे से बुरा सोच के चलें कि रिफ्यूजल आ गया तो क्या करूंगा, दोबारा तो फाइल लगानी है ना, और आपने उस बंदे से फाइल नहीं लगानी, हो सकता है किसी और कंसल्टेंट से लगवानी हो, किसी और कंसल्टेंट से लगवानी होगी तो उसके हाथ पैर कुछ तो होने चाहिए फाइल के, वो होंगे ही नहीं तो फिर कैसे वो आपकी हेल्प करेगा। तो इट्स अगेन रिक्वेस्ट कि फाइल की फोटोकॉपी, चाहे वो कनाडा है चाहे ऑस्ट्रेलिया है चाहे यूरोप है चाहे UK है चाहे न्यूजीलैंड है, कोई भी कंट्री है, फाइल की फोटोकॉपी आप अपने पास जरूर रखिए सेफ।
ਕੁਝ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ 16 17 23 24 25 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੌਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखो जी, मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा, चाहे आपने आइल्स करनी है, चाहे आपने वीज़ा लगवाना है, आप प्लीज़ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर आएँ। तो 16 तारीख को, 17 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को, 25 तारीख को अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में हरियाणा और पंजाब में हम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप आइए, मोस्ट वेलकम। आपका बहुत आभारी रहूँगा, आप सारे आएंगे, टाइम पे पहुँचिए क्योंकि भीड़ बहुत होगी। तो इससे पहले का ये जो नंबर चल रहा है 9115017017, इस पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ की एश्योरेंस ज़रूर दे सकता हूँ कि आपने जिस भी कंट्री में जाना है, वेस्ट ओवरसीज़ आपकी हेल्प करेगा। मैं आपको इस चीज़ की ज़रूर गारंटी देता हूँ कि आपके पास जेन्युइनिटी के साथ और आपको होनेस्टी के साथ सारी काउंसलिंग दी जाएगी, क्योंकि आज की डेट में बड़े बड़े मगरमच्छ मार्केट में बैठे हैं जो वीज़ा बाद में लगवाते हैं, पहले आपसे पैसे हड़प लेते हैं। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਜੀ TRF ਲਈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਡੇਟਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। Thank you. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦਾ YouTube ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ punjabvisahub.com ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।